with your notebook and pen. Okay, students. So today, as we all are knowing that we have to revise our syllabus. So I am going to start books of original entry. You know the chapter name is books of original entry. Okay. So books of original entry में हम लोग पढ़ेंगे क्या? In books of original entry, we will just study about the journal entry. And you know that before passing the journal entry, we must know there are how many types of account. Okay, so take your notebook and start writing. Just what I am explaining here. Okay, students. So are you ready? Yes, sir. Everyone is ready with your notebook? Yes, sir. Okay. Yes. So here you have to write types of account. Types of account. So now see here, there are in major part two types of account, one and two. One is personal account. One is personal account, and second one is impersonal account, right? So, but we have to classify further to impersonal account into two parts. One is real and second one is nominal. Okay. So far as according to further classification, we can classify it to three parts. Let's one is personal account, second is real account, and third is nominal account. Okay students, so पहले आप ध्यान से देखो, ये पूरा फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, you just you can note it down. Okay, so here first one is personal account, second one is real account, and third one is nominal account. So is it clear to all of you? ये थ्री अकाउंट आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ओके. सो बेटा अब हम लोग फर्दर क्लासिफाई करने जा रहे हैं अकाउंट्स के बारे में, ठीक है? अब अच्छे से ध्यान रखोगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट has been classified into three parts. Note it down on your copy. Personal account has been classified into three parts. One is natural personal account. Second one is artificial personal account. And third one is representative personal account. Okay. So personal account has been classified into three subparts: natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Okay, so let me discuss about the types of account of personal. Done? आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Personal account क्या है? Now listen carefully. Personal account refers to the name of person, name of organization, and name of all those accounts which represent indirectly to a person or to a organization. Okay. So personal account क्या होता है? Personal account refers to the name of person or name of organizations or institutions or and the name of all those accounts which indirectly represent to a person or to an organization or firm. This is called personal account. Accordingly,
personal account has been divided into 3 parts. One is natural, second one is artificial, third one is representative. अब हम एग्जांपल बताते हैं. देखो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है which has been made by God, which has been made by God. ओके, जिसको कि भगवान ने बनाया है. ओके, जिसका अपना फिजिकल अपीयरेंस है. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है बेटा, आप लोग देखो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ. अदिति, पर्सनल नेचुरल पर्सनल में एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा है? जस्ट रीड इट फॉर मी. सर हाँ राम सर, श्याम स्क्रीन नहीं दिख रही। खुशहाली बेटा, आपके साइड नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी. देखो भी अदिति रीडिंग राम कर रही है, श्याम उसको दिख रहा खुशहाली है. मानस। ठीक है, तो Yes, दिख रहा है. देखो आप मानसी स्क्रीन भी नहीं है, पर. मानसी। ओके अदिति, now unmute your mic Sir. yourself and start reading. यहाँ लिखा हुआ है राम. अब ध्यान से सुनिए अच्छा, फिर सभी लोग, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा होगा. नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है राम, श्याम, खुशहाली, मानस, अदिति एक्सेट्रा. सो मैंने क्या लिखा है यहाँ? नेम ऑफ पर्सन लिखा है, जिसको कि गॉड ने बनाया है, यानी कि जिसका अपना फिजिकल अपीयरेंस है, अपना नाम है, जिसका बर्थ और डेथ गॉड के हाथ में है. ठीक है, दिस इज व्हाट natural personal account. It comes under the personal account, right? Overall is called personal account, but if we classify, so name of the people is called natural personal account, right? अब आते हैं artificial personal account में. See the example. In artificial personal account you will find example bank, school, hospital, बिजनेस एंटिटी एक्सेट्रा. ठीक है, सो देखो बैंक, जैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं. ठीक है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? देखो बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसके फीचर्स, जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो तो हम आम पीपल के जैसा होता है, नेचुरल पर्सन के जैसा होता है, बट रियल में इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता. दे आर नॉट मेड बाय द गॉड, they are made by the law on getting the registration on the paper only. Okay, so इसमें क्या होता है कि जैसे बैंक, अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो आप तो कहोगे सर बैंक ऑफ बड़ौदा तो दिखता है लंका पर है वहां, या आपके आसपास में होगा कोई भी बैंक. सो बेटा वो मगर सर इसको इंसान बनाया है. बैंक की बिल्डिंग दिखती है, वो उसका एसेट्स होता है. बैंक कहाँ स्टार्ट होता है? वो खुले आसमान के नीचे भी हो सकता है, क्योंकि वो बैंक कहीं भी चला सकते हो आप, एक घर के अंदर बैठकर भी, तो वो पेपर पे रजिस्टर्ड होता है ना. जो बिल्डिंग देखते हो वहां से बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम हटाकर कोई और नाम लिख दो तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ गया? बिल्डिंग तो वही है, बैंक कहीं और चला गया. बैंक कभी कभी देखते हो ना, ट्रांसफर हो जाता है, उसका ब्रांच शिफ्ट हो जाता है, तो क्या वो अपनी बिल्डिंग लेकर जाते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपना नाम लेकर जाते हैं. ठीक है, सो जैसे हम लोगों का अपना नाम होता है, उसी तरह इन लोगों का भी अपना नाम होता है. जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, तुम्हारा स्कूल का नाम हो गया इंटरनेशनल हिंदी स्कूल हो गया. ठीक है, BHU हो गया. तो ये सब देख रहे हो कि सब पेपर पे चलते हैं. ये जो हमें दिखाई देता है ये सब इनकी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होता है. तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का अपना कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, राइट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का कोई अपना फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता. फॉर एग्जांपल में बैंक हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बिजनेस एंटिटी एक्सेट्रा. सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संस्था का नाम, हॉस्पिटल का नाम, स्कूल का नाम, बिजनेस का नाम, टाटा, बिरला, ये सब नाम है. ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल में. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनल में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस अपना खुद का नहीं है. इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यानी गॉड के थ्रू नहीं हुआ है, ये पर्सन के थ्रू हुआ है. ठीक है, लॉ के थ्रू. सो आई थिंक कि यू ऑल आर अंडरस्टूड कि अगर कोई पूछेगा बैंक कौन सा अकाउंट है तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन पूछेगा पर्सनल में कौन सा अकाउंट है तो आप बताओगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. आर्टिफिशियल पर्सनल. हाँ, वेरी गुड बेटा. सो अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीसरा. सो देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है?
सो देखो ये कुछ नया एक इजाद हुआ है, ये ना तो कोई इनका अपना फिजिकल अपीयरेंस से मतलब है, ना तो आर्टिफिशियल से। ये एक ऐसा वर्ड होता है, जैसे होता है ना कोडिंग आप लोग करते हो कि इसका मतलब ये, जैसे कंट्रोल जेड की है कंप्यूटर में तो वो वापस हो जाता है, अंडू और रीडू ये सब का ऑप्शन है ना, तो ठीक इसी तरह कोडिंग होता है। कहने का मतलब किसी पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उसका खुद का नाम यूज ना करके उसके नाम की जगह कुछ दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं। उसको पढ़ने से हमें पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनडायरेक्टली किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी देता है, हमें बताता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है डेटर, है ना, डेटर, फिर लिखा है क्रेडिटर, फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, अक्रूड इनकम एक्सेट्रा। मतलब इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। अब आप बताओ कि डेटर कब हम यूज करते हैं? जब हम किसी कस्टमर को गुड्स उधार सेल करते हैं, ठीक है। जब भी कभी अगर तुम दुकान ओपन करके बैठे हो और तुम्हारा कोई कस्टमर आया रेगुलर और तुमसे गुड्स उधार ले गया, तो उसका नाम कॉपी पे लिख लेते हैं कि इतने रुपए से वो उधार ले गया। लेकिन जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जितने लोगों को हमने उधार बेचा है उनका एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं डेटर, ठीक है। तो जितने कस्टमर को हमने उधार बेचा है वो सारे कस्टमर को हम डेटर कहते हैं। तो डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो हम किसी पर्सन को बेचे होंगे या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचे होंगे। तो उसका नाम, मान लो कि तुम्हारा होलसेल का दुकान है और तुम रिटेल वाले को सेल करते हो, ठीक है। तो रिटेलर वाले का दुकान का अपना नाम होगा, मान लो जनरल स्टोर, मान लो कि राहुल जनरल स्टोर है, राहुल जनरल स्टोर को तुमने बेचा 10,000 का गुड्स उधार, तो राहुल जनरल स्टोर क्या है? एक फर्म का नाम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, ठीक है। तो उनको आपने उधार बेचा तो उनको किस कैटेगरी में रखोगे? डेटर में। डेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? राहुल जनरल स्टोर को, जो कि एक पर्सन है ना। सो बेटा डेटर समझ में आ गया कि कैसे होता है, कि डेटर कैसे पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, क्योंकि ये यस डेटर सर। किसी कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर, सॉरी फ्रॉम सप्लायर, जब हम गुड्स खरीदते हैं किसी से उधार, तो जिस बंदे से हमने खरीदा वो बंदा हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। मान लो मिस्टर राम से आपने गुड्स उधार खरीदा, ठीक है, श्याम से भी गुड्स उधार खरीदा, ठीक है, और किसी फर्नीचर मार्ट्स वाले से भी उधार खरीदा, तो 2-3 लोगों से उधार खरीदा, तो इन सब से उधार खरीदा, तो इनकी भी एक ग्रुपिंग करेंगे हम कि कितने लोगों से उधार खरीदा, उसको एक जगह पे रखेंगे। तो जो ग्रुप करेंगे उस ग्रुप का नाम देंगे हम क्रेडिटर। जैसे डेटर नाम दिया था जितने लोगों को उधार बेचते हैं, उसी तरह जितने लोगों से हम उधार खरीदेंगे उसको क्रेडिटर का नाम देंगे, राइट। सो क्रेडिटर का नाम देंगे तो क्रेडिटर क्या हो गया तुम्हारा? वो पर्सनल अकाउंट हो गया। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन लोगों को जो कि एक पर्सन है या किसी का बिजनेस है, ठीक है, जिससे हमने गुड्स उधार खरीदा है, राइट। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज पे। सो देखो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेंसेज जो हमारे ऊपर ड्यू तो हो गया है लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। तो अब बताओ कि जब हम पेमेंट नहीं किए तो उसको अपने कॉपी में तो लिखेंगे ना कि पेमेंट करना है फला व्यक्ति को, तो हम उसका नाम नहीं लिखते, हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, मिस्टर रवि, मान लो रवि नाम का कोई लेबर है आपके घर पे काम कर रहा है, ठीक है। अब उसकी मजदूरी हो गई, शाम को 500 रुपये उसको देना है आपको, और आपने बोला कि आज 300 रुपये मैं दूंगा, 200 रुपये बाद में, ठीक है। तो 300 रुपया दे दिया, 200 रुपया आपने लिख दिया कि रवि को पेमेंट करना है, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, लेकिन एक जर्नल एंट्री में हम लोग नरेशन भी लिखते हैं, आगे बताएंगे। नरेशन यानी कि क्लैरिफिकेशन, कि ये पैसा जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया। तो उसमें लिखेंगे कि मिस्टर रवि को इतना रुपया वेजेस का देना है। तो हम जर्नल एंट्री में रवि का नाम नहीं लिखेंगे, जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग
वेजेस यानी मजदूरी जो हमारे ऊपर बकाया है उसका नाम लिखेंगे। तो अब हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को जैसे ही पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्लिक करेगा ना कि अच्छा हाँ ये मिस्टर रवि को देना है पैसा जिससे हमने काम लिया था, सर्विस लिया था, ठीक है। तो अब बताओ कि आउटस्टैंडिंग वेजेस रिप्रेजेंट किसको किया? रवि को, जो कि एक पर्सन है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ठीक इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है? जैसे अपने फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देनी होती है, ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय को लग रहा है पैसे की जरूरत है और तुमसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमें 1 महीने की एडवांस सैलरी दे दीजिए, हम आगे सर्विस करके जॉब करके उसको डिडक्ट करवा देंगे। तो आपने क्या किया कि उसको एडवांस सैलरी दे दिया, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी। बट नीचे नरेशन में लिख देंगे कि किस व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरी क्या बता रहा है? उस पर्सन को बता रहा है जिसको हमने पैसा एडवांस दिया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक व्यक्ति को, ठीक है। तो इसी तरह अक्रूड इनकम होता है। अक्रूड इनकम क्या होता है? जैसे बैंक में तुमने पैसा मान लो 10,000 रुपया एफडी कर दिया, अब बैंक तुम्हारे हाथ में रोज तो पैसा ब्याज का देगा नहीं, ठीक है। जो एफडी किया वो इंटरेस्ट हमको मिलता है, और आपको पता है कि बैंक का अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 मार्च को, ठीक है। और हमने क्या किया कि 5 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या करेगा? हर साल हमको इंटरेस्ट थोड़ी देगा, हर साल हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता जाएगा, इकट्ठा करके हमको लास्ट में 5 साल के देगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हर साल हम इंटरेस्ट तो अर्न कर रहे हैं लेकिन अभी हमको मिला नहीं है। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम जो लिखा है वहां पे जो इनकम का नाम होगा, फॉर एग्जांपल हमने लिया इंटरेस्ट। सो अक्रूड इंटरेस्ट क्या बता रहा है कि ये पैसा हमको लेना है। किससे लेना है? बैंक से। बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है। तो हमें अक्रूड इनकम किसी व्यक्ति या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल के बारे में जानकारी दे रहा है कि इस व्यक्ति से, इस पर्सन से हमको पैसा लेना है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सनल अकाउंट को, तो इसलिए इसको भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। सो देखो बेटा हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आई होप कि यू ऑल आर वेरी क्लियर with the natural personal, artificial and representative, all are called personal account। जब आपसे पूछा जाएगा कि पर्सनल में कौन सा है तब आप बताओगे कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है कि रिप्रेजेंटेटिव है। जनरली अगर हमने पूछा बेटा डीडर कौन सा अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है, पूछा कि पर्सनल में कौन सा है तब बताओगे कि रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। सो आई होप कि पर्सनल अकाउंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा पर्सनल अकाउंट Yes, सभी sir. को क्लियर हो गया? ओके। Yes, sir. अब आते हैं हम लोग रियल अकाउंट पे, ठीक है। सो रियल अकाउंट आप देखो, रियल का मतलब क्या होता है? जो रियल में है, वास्तव में, ठीक है, जिसका अपना कुछ एग्जिस्टेंस है ना। सो रियल अकाउंट में बेटा कितने होते हैं हम बनाने जा रहे हैं। हम इसको इरेज कर दें, ये जो लिखा हुआ है आप लोगों ने लिख लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. आप लोग मेरा Yes, वीडियो पिन करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आएगा ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में या लिख सकते हो। चलो ठीक है, हम अब आते हैं रियल के बारे में समझाने, पर्सनल हटा देते हैं, ठीक है। कहते ना वीडियो क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन पे आएगा। मेरे वीडियो पे टैप करिए तो पिन ऑप्शन आएगा, पिन पे आप क्लिक करेंगे तो फुल आ जाएगा, ठीक है। सो बेटा आप देखो हम लोग रियल के बारे में पढ़ेंगे। रियल अकाउंट में 2 टाइप्स के एसेट्स होते हैं। वन होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। ये सब हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, है ना। सो टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स रियल अकाउंट में लिख लो, आप लोग नोट कर लो। अब टेंजिबल क्या होता है ध्यान दो। टेंजिबल एसेट्स, देखो टेंजिबल एसेट जैसा कि नाम से बता रहा है, टेंजिबल का मतलब होता है विजिबल, ठीक है, जो दिखाई दे, which we physical appearance. can see or touch, जिसको हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है।
इसको क्लियर है? विच वी कैन सी और टच इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीन, कॉपीराइट, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। मतलब बेटा जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल कहलाता है। आप लोग पेन लिए हो हाथ में, मोबाइल लिए हो हाथ में, ये सब क्या है? देख सकते हो, Yes, छू sir. सकते हो, तो ये सब भी तुम्हारा टेंजिबल एसेट्स है। ठीक है? जिस चेयर पे बैठे होगे, जिस बेड पे और टेबल पे कहीं बैठे होगे घर पे, वो सब क्या है? टेंजिबल है, जो कि तुम देख सकते हो, छू सकते हो, जिसका अपना फिजिकल अपीयरेंस होता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है, लाइक कैश। कैश या तो क्वाइन होगा या तो पेपर मनी होगा, तो आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट इज व्हाट? टेंजिबल एसेट्स। सो नोट कर लिया इसको। तो टेंजिबल एसेट्स में जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सब रियल है। रियल में तो दो चीजें हो गई, पर्सनल को अगर हटा दो तो रियल समझ में आ गया। जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, हमारे सराउंडिंग में है, वो सब रियल है। इसको मैं इरेज कर दूं? शुड आई इरेज दिस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, सो अब हम इनटेंजिबल के बारे में बताते हैं। जिसका सर फिजिकल अपीयरेंस नहीं रहता है। Okay, so now intangible assets. So बेटा intangible assets क्या होता है? जो इनविजिबल हो, जो दिखाई ना दे, वेल we can not see or touch. ठीक है? बट अब हम कह रहे हैं एक तरफ से कि ये रियल अकाउंट है, वास्तविक यानी रियलिटी में जो है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इंटेंजिबल है। देखा जाए तो क्या हो गया? पैराडॉक्स हो गया, एकदम जस्ट अपोजिट। कि रियल अकाउंट में पहला तो समझ में आ गया टेंजिबल, जो कि दिखाई देता है, जो रियल में है, वो तो क्लियर हो रहा है सभी को। बट इनटेंजिबल एसेट्स में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम छू नहीं सक रहे हैं, वो कैसे इंटेंजिबल हो गया, अरे कैसे रियल हो गया? तो है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ और फिर समझाता हूँ। क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सेकंड चैप्टर में हम पढ़ाए थे बहुत अच्छे से, जो लोग उस समय रहे होंगे क्लास में, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। गुडविल, गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट, वेरी गुड, जो बता रहा है बहुत अच्छा बताया। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट की स्पेलिंग RIGST लिखेंगे ना, कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क्स, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ट्रेड मार्क्स, रॉयल्टी, ये सब एग्जांपल लिख लो जिसको नहीं मालूम है। करेज, रॉयल्टी, और क्या हो सकता है? करेज, क्या चीज? सर करेज, एक मिनट, कैरेज, स्क्रीन करेज सर करेज, एक मिनट, आवाज तुम लोग की, हाँ बोलो आप। सर करेज, करेज स्पेलिंग बताओ। COURAGE, नहीं बेटा, करेज यहाँ नहीं आएगा, ठीक है? करेज कहाँ से पढ़ लिए? ठीक है, सर ऐसे ही सर्च किए। हाँ नहीं, करेज नहीं है जो बता रहे हैं। हम सोचे शायद पढ़े होगे कहीं से, इसीलिए मैंने पूछा। करेज नहीं है, ये कोई वर्ड ही मतलब अकाउंट में नहीं है। यहाँ ध्यान दो, which we cannot see or touch, for example goodwill, patent, copy, right, software, trademark, royalty, और एक होता है, हाँ ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट, ठीक है। So these are the examples of
इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये एक तरफ हम लोग इंटेंजिबल भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ एसेट्स भी कह रहे हैं, आखिर में ये कैसे पॉसिबल है? तो ये मेजर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, इनका इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं हम लोग, राइट। लेकिन कैसे, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका कैसे मेजर करेंगे? आवाज क्रैक हो रही है, चलो कोई बात नहीं, बताता हूं। देखो, गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस, यानी रेपुटेशन। आप सोचो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं। मिस्टर ए भी कपड़े की दुकान बहुत अच्छी किए हुए हैं, बहुत बढ़िया पैसा वैसा लगाया उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस और पूरा शोरूम जैसा बनवाया है, और मिस्टर बी का भी है। लेकिन मिस्टर बी का जो नेम फेम है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत पहले से बिजनेस कर रहे थे, और ये अच्छी यानी रिजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दे रहे थे, कस्टमर के साथ उनका बिहेवियर अच्छा था, ऑनेस्टी थे, ठीक है, कभी उनको कोई चीट नहीं करते थे, गलत चीजें नहीं बताते थे, जिसकी वजह से उनका नेम फेम बहुत हो गया, ठीक है। तो अब बताओ कि मिस्टर ए का भी सेम बिजनेस है, बी का भी, भीड़ किसके यहाँ ज्यादा होगी? बी के यहाँ सर। बी के यहाँ होगी, वेरी गुड। तो बेटा बी क्यों इतना भीड़ जुटा रहा है? बी के यहाँ भीड़ ज्यादा होगा तो सेल भी ज्यादा होगा, उसका टर्नओवर ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा तो उसकी प्रॉफिट भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एसेट्स का क्या काम होता है? किसी भी एसेट्स का काम होता है हमारे बिजनेस को स्मूथली रन कराए बिना किसी बैरियर के, और प्रॉफिट अर्न करने में हमको हेल्प करे, ठीक है। तो अब आप देखो कि गुडविल क्या कर रहा है। अगर आपका नेम फेम है तो आपका बिजनेस बड़ा तेजी से चलेगा, बहुत दूर दूर नाम है, दूर दूर से कस्टमर आएंगे, ढेर सारे कस्टमर आएंगे, टर्नओवर ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा और ढेर सारे ब्रांचेस आप फैलाओगे, है ना। सो गुडविल क्या कर रहा है? एसेट्स के सारे काम कर रहा है ना। तो हम लोग गुडविल को एसेट्स कहते हैं, यही रीजन है। एसेट्स के फीचर इसके अंदर है। ठीक उसी तरह पेटेंट है बेटा। पेटेंट क्या होता है? सभी को नहीं मिलता पेटेंट। पेटेंट जो कंपनी काफी दिनों से, सालों से रिसर्च कर रही होती है और रिसर्च करने के बाद किसी ऐसी चीज का आविष्कार करती है जो कि अब तक किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो उस चीज को आविष्कार कर लेती तो अपने गवर्नमेंट से उसको प्रोडक्शन करने का मोनोपोली लेती है, राइट लेती है, जिसको पेटेंट कहते हैं। मतलब उसके अलावा उस देश में कोई और प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो आप सोचो कि अगर कोई ऐसी चीज का आविष्कार किया जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है ना, और केवल बनाने वाला एक ही व्यक्ति है, तो सोचो उसकी कितनी अर्निंग होगी, यू कांट इमेजिन, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो कमा रहे हैं, बिजनेस जो बढ़ रहा है इतना, वो किसकी वजह से? वो बढ़ रहा है पेटेंट की वजह से, ठीक है। तो ठीक इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, ये सब हम पढ़ा चुके हैं बहुत पहले। सिर्फ आप लोग अभी एग्जांपल रख लो, चूंकि रिवीजन चल रहा है तो जल्दी से खत्म भी करना है। तो यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ पर्टिकुलर आइटम व्हिच कम्स अंडर intangible assets and these are called real account. Okay, so real account are two types, tangible and intangible. tangible में जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, like cash, goods, furniture, building, plant, machinery, etc. ठीक है। और intangible जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट इसका monetary value बहुत ज्यादा होता है, हमारे बिजनेस पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल्स में लिख सकते हो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा, ठीक है। सो आई होप रियल अकाउंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा रियल Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अब हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट। यस सर। हाँ गुड, नॉमिनल पे आते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सभी को दिख रहा है प्रॉपर ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, मैं हर जगह इसीलिए कि उसको छोड़ देता हूँ, मेरे को कंफर्टेबल भी है एक जगह लिखने में। सो नॉमिनल अकाउंट, सो बेटा नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल जैसा कि नाम, इट इज जस्ट अ नेम,
It is just a name only. ये केवल एक नाम मात्र का है, इसका कुछ रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसमें आता क्या है, इट इज द नेम ओनली, जस्ट अ नेम ओनली ऑफ एक्सपेंसेज एंड लॉसेस और एंड इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ये केवल नाम है, इसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं समझाता हूं इसको कैसे, आप लिख सकते हो, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज ओनली, दैट्स इट। इनकम एंड एक्सपेंसेज का ये केवल नाम है। अब मैं समझाता हूं आपको, एग्जांपल में लिख देता हूं, समझाते हुए एग्जांपल लिखता हूं, चलो ठीक है। देखो बेटा, आप सभी लोग एज ए स्टूडेंट तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। पहले आप एक स्कूल में पढ़ते हो, आपकी मंथली फीस जमा होती है ना। तो आप जब स्कूल में फीस जमा करते हो तो आप स्कूल में क्या देते हो, पैसा देते हो। लेकिन आप नाम क्या कहते हो, कहते हो कि मैंने फीस जमा कर दिया। आप नहीं कहते हो पैसा जमा कर दिया, आप कहते हो फीस डिपॉजिट कर दिया। मतलब जो खर्चा हुआ उसका हमने एक नेम दिया। जिस पर्पस के लिए हम कोई पैसा खर्च करते हैं उस पर्पस का अपना एक नेम देते हैं, सो दैट वी कैन कैटेगराइज कि कितना पैसा किस काम के लिए खर्च हुआ है। तो एक तरीके से स्कूल का फीस दिया, सो फीस तुम्हारा क्या हो गया, एक्सपेंसेज। अब आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस में अपने यहाँ एम्प्लॉय लोगों को रखे हो, एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको हम या तो डेली वेजेस पे पेमेंट करते हैं या तो मंथली। जो डेली वेजेस पे पेमेंट करते हैं उनको वेजेस कहते हैं, मजदूरी, और जो मंथली देते हैं उनको कहते हैं सैलरी। मंथली जो फिक्स होता है कि इतना तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो बेटा सैलरी दिया, वेजेस दिया, तो इन सब में दे क्या रहे हो, पैसा। क्या दे रहे हो, पैसा। लेकिन आप नाम क्या दिए उसको, वेजेस। नाम क्या दिए, सैलरी। तो इट इज जस्ट अ नेम ऑफ एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स एंड नथिंग एल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ये एक नाम मात्र का खाता है, अकाउंट है, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेज आएंगे, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेज या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, ठीक है, और तुम्हारा जैसे कैरिज आपने ढुलाई भाड़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी खर्च होंगे, अगर हम खर्च कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो सब हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब इनकम क्या होता है, तो बेटा आपको पता है कि इनकम और एक्सपेंसेस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कैसे, अगर हमारे लिए एक्सपेंसेज है तो सामने वाले के लिए क्या होगा, इनकम होगा। अगर आपने स्कूल में फीस जमा किया तो स्कूल अगर अपना अकाउंट मेंटेन करेगा तो फीस को वो इनकम में दिखाएगा। अगर आपने वेजेस अपने किसी मजदूर को दिया तो आपके लिए खर्चा हुआ, लेकिन वही मजदूर अपने यहाँ इसको इनकम में दिखाएगा क्योंकि उसको इनकम मिला। सैलरी आपके लिए खर्चा है लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए इनकम है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह आपको भी मिलता है, जैसे कमीशन हो गया, कमीशन आप देते भी हो और कमीशन आपको मिलता भी है। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट आप पे भी करते हो, अगर लोन लिए हो तो इंटरेस्ट पे करोगे, और आपने किसी को लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज ओनली अ नेम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, दैट्स इट। सो डिड यू गॉट दिस, डिड यू गेट दिस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So okay beta, so now types of Sir. account is over. Is there any confusion? You can arise your questions so that I can write the rule of debit and credit. आप बताइए, अभी तक तीनों अकाउंट पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, राइट। पर्सनल में 3 पढ़ा, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, और नॉमिनल में इनकम एंड एक्सपेंसेज, नेम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंसेज ओनली, दैट्स इट। सो क्लियर है? Should I erase all the points written on the board? Sujata? Sujata beta, is there any confusion? Yes, sir.
Okay, so now I am going to write the rules of debit and credit. That is very important. Yes. So golden rule, this is also known as golden rule of debit and credit. So बेटा आप लिख लो डेबिट क्रेडिट रूल, आप या तो डेबिट क्रेडिट रूल लिख लो या तो गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो जितने भी अकाउंट्स हैं हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, अच्छे से ध्यान से सुनना सभी लोग। ठीक है, देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट डबल एंट्री सिस्टम। सो एज पर डबल एंट्री सिस्टम, each and every business transactions having twofold effect or two aspect we can say. One aspect is to be debited and other aspect is to be credited by their respective rules, right? Just I am repeating it again. Each and every business transactions having twofold effect. Okay, one is to be debited and other one is to be credited according to their rule. Okay, so according to their rule यानी जिस अकाउंट का जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग उसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंट में देखो दो ही चीजें, एक तो डेबिट और क्रेडिट। जो ये समझ गया अच्छे से समझ लो, अकाउंट समझ गया। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसा पता चला कि डेबिट क्रेडिट में जर्नल एंट्री में एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, तो कैसे समझेंगे कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखो। तो हमारे पास तीन अकाउंट है फॉर पर्सनल अकाउंट। पहले देखो बेटा, पर्सनल अकाउंट का मतलब ऑल काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट। यहाँ हम कैटेगराइज नहीं करेंगे कि कौन सा नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है। जो रूल होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने भी अकाउंट आएंगे सभी के लिए डेबिट क्रेडिट रूल आपका कॉमन होगा। ठीक है, सो क्या होगा, याद रखो, डेबिट इज द रिसीवर। ठीक है, ठीक है, याद रखो, डेबिट क्या करते हैं हम लोग, डेबिट इज द रिसीवर, किसके अकॉर्डिंग, पर्सनल अकाउंट में। और दूसरा रूल पर्सनल अकाउंट का है, क्रेडिट is the giver. हाँ, वेरी गुड, इज द गिवर। ठीक, डन। सो आपका पर्सनल अकाउंट का रूल ओवर हो गया। जो ये याद किया है तभी क्वेश्चन लग पाएगा। आज हम लोग इसको यहाँ तक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा दें। बीच में नहीं है मेरा क्लास तो भी दिन पूछ के, लेकिन स्कूल जाना हो रहा है आजकल ना, तो थोड़ा सा टाइम होगा। तो फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। अब आते हैं दूसरा, फॉर रियल अकाउंट। ठीक है, फॉर रियल अकाउंट, सो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग है डेबिट comes out. what comes Come. in। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन और Credit goes out. व्हाट गोज आउट। वेरी गुड बेटा, आप लोग पढ़े हो अच्छे से। सर टेस्ट ऑनलाइन होगा? हाँ देखो, ऑनलाइन ही तो होने का है। अब अगर से गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर करता है बीच में तो ऑफलाइन नहीं रहेगा, वैसे ऑनलाइन होगा अभी। ठीक है, आप अच्छे से तैयार रखो। अभी मैंने टेस्ट लिया था सर उसके लिए आईडी चाहिए? हाँ, जैसा मैंने एक टेस्ट लिया था अभी, ठीक उसी तरह होगा, लेकिन उसमें आप लोग का यूजर आईडी पासवर्ड, आप लोग का एक मॉक टेस्ट होना है किस दिन ना, ताकि वो स्टेटस चेक हो जाए कि सबका हो रहा है कि नहीं लॉगिन। चलो ठीक है, फॉर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, ये हो गया रियल अकाउंट का।
ठीक है, अब इसे लिख लो, जो लोग नहीं लिखे, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग लिख लो। डन। तीसरा अकाउंट बचा है नॉमिनल का। पर्सनल अकाउंट का हटा दें। Yes, sir. नॉमिनल का आप दे दो। फॉर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, फॉर नॉमिनल में Expensive. it all expenses and losses, ठीक है। अभी डेबिट क्या करेंगे, एक्सपेंसेज और लॉस को डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड Income and gain. हाँ, वेरी गुड। यस बेटा। सो आपका ये रूल है डेबिट क्रेडिट रूल, दिस इज आल्सो नोन एज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक सबका हो गया। आप सभी लोग नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर